Welcome to Rudra Life. We are nearing the end of December and we have the approaching New Year according to the Gregorian calendar. New Year always is about anticipation, about hope, and hope of better things in life. We are all desirous of success, a good life, actually, and everybody works towards that. They put the best effort possible. But do they all get the success in the same measure? Probably no. There are certain things which are not within our control. We define them as luck, destiny. There are these things which sometimes create limitation to what we can achieve actually. Similarly, we have got many other things which block or obstruct us from reaching the best in life. How do we get over them? We have to put in the best effort possible and keep hope that things fall in place and we are able to get the best possible in life. And to achieve that, Rudra Life is organizing a series of Sankalp Pujas which can help us to overcome the unponderables in life. We start the month with the first puja on the 1st of January 2022. It is the Mahabhagyodaya Anushthan. As the name suggests, it's about improving the luck factor, correcting anything possible in the destiny. Then we have on the 12th of January, we have Sarva Badha Nivaran Anushthan. On the 14th, which is the first festival in the new year, which is the Mahasankranti, we have the Mahasankranti Aditya Aradhana, followed by a very grand celebration, which is the Bhagavad Katha Mahasaptah, which is a 7-day celebration of the Bhagavad Katha. Yes, there could be doubts in your mind as to what are these pujas about. We once again have Akash Mishra, who is an expert on pujas, rudrakshas, tantric practices, as I've explained earlier too. He is the best person who can clear our doubts or queries that we have about these pujas and how and why we should do these pujas. Akashji, welcome to the Rudra Life seminars once again. We have a long list of 4 pujas this month actually. What are the significance of these pujas and how are they important to each one of us? See, each of us, whenever we visit a astrologer or a saint or a person who is elderly to see very as to when मेरा भाग्य उदय कब हो, पंडित जी या महात्मा जी से हम पूछते हैं, तो भाग्य उदय और the luck factor. It is something like मेरा टाइम कब आएगा? मेरा टाइम कब आएगा? Exactly. तो as per Vedic astrology, the first house represents the self, myself. It is something that we inherit. We're born with it. We are born with it, and no one can change it. Self, the punyas, and all that. But the factor which rules bhagya or fortune, luck, fame, is the 9th house. 9th house represents father, the soul power, will power, and it is straight away linked to fortune. Now, for example, I inherit a mango tree, वो मेरा भाग्य था. But the mangoes, when they ripen, I have to make an effort to pluck a fruit, and only then I can enjoy the fruit. Similarly, the 9th house is the factor
or the luck factor that we are born with. But in order to perform that karma, the 10th house comes in. 10th house is related to karma, efforts, greed, everything. We have to make an effort to fructify that bhagya. And when a person और कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसका भाग्य उदय होता है और उसका फल कहाँ मिलता है? एकादश भाव से, जिसे लाभ का भाव कहा गया, इनकम गेन्स। तो कुल मिलाकर मनुष्य के अगर किसी भी आप जातक को देखें या आपको कभी किसी को एडवाइस करना है तो नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव को हमें मजबूत करना पड़ेगा। वी हैव टू स्ट्रेंथन दीज थ्री हाउसेस, energize those. हाउसेस। तो दिस भाग्य उदय अनुष्ठान और पूजा दैट वी विल डू इज ईच एंड every one of us different ascendants and different planets in the 9th, 10th and 11th house. For example, for the A few lucky ones have the 9th house guru, just like me. Exactly. So, just to simplify things for our viewers, for a person who has Aries ascendant, the 9th house is Jupiter, that is Sagittarius or Dhanu. 10th house is Makar, Capricorn, and the 11th house is again Kumbha, Aquarius, ruled by Saturn. So people who do not have a birth chart or a Kundali chart, what we have done is we will be doing a japa of all the 9 planets, irrespective of ascendant and So that whichever planet is there Yeah. in the 9th, 10th and 11th, the benefits are To give derived. another example, a person who has Cancer ascendant, जिसका कर्क लग्न है, तो उसका नवम भाव हो गया मीन, Pisces, 10th is Aries, ruled by Mars, and 11th is Taurus, ruled by Venus. So we will be chanting all the 9 this Bija mantras of all the 9 planets, which will be followed by a Havan. Which whenever you chant or do a mantra japa, Havan is at most necessary. तो हमारा ये प्रयास यही होगा कि हम किस तरह से हमारे साथ में जो यजमान हमसे जुड़ते हैं उनका नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव को हम मजबूत करें। तो उसके जीवन में और एक नवग्रह का ये है कि कोई भी ग्रह अगर दूषित है, कुछ बाधाएं देगा, तो वो भी शांत होगा और नवम, दशम और एकादश भाव मजबूत होंगे। तो उसके लिए अनुष्ठान ये। दूसरा सर्वबाधा गणेश जी इसके प्रधान देवता है। हम जानते हैं वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उनकी प्रत्येक पूजा आराधना में चाहे किसी भी देवी या देवता को गणेश जी का आह्वान किया जाता है कि ये पूजा, ये अनुष्ठान जो भी है, हम कई नई संस्था खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कोई भी नया कार्य करने वाले गणेश जी का हम आह्वान करते हैं। और दूसरा ये कि बाल्यकाल से मनुष्य के अंत तक ऐसा कोई स्टेज नहीं जहाँ बाधाएं नहीं होती। जब हम छोटे होते हैं तो परीक्षा देते हैं, हमें लगता है कि हम यही बाधाएं पार करके हम तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन का मतलब ये है बाधाओं को पार करना। और ये पूजाएं, मंत्र, जप, तीर्थों को जाना, ईश्वर की आराधना करना, ये हमें एक मानसिक और आत्मिक शक्ति देते हैं कि बाधाएं किसी भी प्रकार की मैं इसको पार करके आगे बढ़ूं, तभी तरक्की हो सकती है। बिना बाधाओं के आपका चरित्र का भी निर्माण नहीं होगा। बाधा जब तक नहीं है, आदमी या इंसान कह लीजिए, मनुष्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बिना बाधाओं के उसका चरित्र का परीक्षण होता ही नहीं, ना ही उसका चरित्र उभर के आ पाता है। मैं अगर किसी राजा के घर में पैदा हो गया हूँ, उसमें दिनचर्या में वही है, मौज मस्ती, खाना पीना, बस। लेकिन जहाँ एडवर्सिटी आती है, a person who does not face adversity cannot, तभी पुरुषार्थ को प्राप्त होगा। पुरुषार्थ तभी होता है जब बाधाएं आती है, वही हमारे चरित्र का प्रमाण होती है।
मनुष्य का कैरेक्टर अगर अच्छा है, चरित्र अच्छा है, तो उन बाधाओं की परिस्थितियों में वो दृढ़ रहेगा। नहीं, बाधाएं आती हैं, प्रश्न उठते हैं, तो उसका उत्तर भी है, हमें उससे ढूंढना पड़ता है। तो गणेश जी हमें एक तो ज्ञान और बुद्धि के देवता माने गए हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो हमारे द्वितीय पूजा ये गणेश अनुष्ठान हो गया। और जैसे कि हम एक वैदिक कैलेंडर या जो ये हिंदुओं का पहला जो त्योहार है, पर्व है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उसी दिन से सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाते हैं। ये बहुत अच्छा समय माना जाता है दान करना, पुण्य करना, पूजाएं, मंत्र जाप। इस पूजा में सूर्य का महत्व बहुत अधिक है। तो सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता माने गए, कर्म साक्षी भी माने गए। मनुष्य क्या क्या कर्म करते हैं सूर्य को पता है। तो ये उस दिन एक अच्छा भव्य आयोजन किया गया। सूर्य का आदित्य सूर्य का पाठ होगा और मंत्र जाप वगैरह हम उस दिन करेंगे। तो ये एक तरह से हमारे सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य हमें ख्याति देता है, हमें हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको प्रकाशवान करता है कि मैं कौन हूँ, क्या है हमारे जो निहित हमें प्रकृति से जो हमें टैलेंट दिया मिला है, जो भी है जन्म से, और अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता ऊर्जा देता है। सूर्य ऊर्जा का कारक है और वो सूर्य को आत्म कारक भी माना गया है, आत्मा को बल देता है। तो सूर्य आराधना को मकर संक्रांति के बहुत ही शुभ अवसर है और यजमान इसमें जुड़ के अपने सूर्य को बल प्रदान कर सकते हैं। इस महीने में जनवरी का जो आपने जैसे अरेंजमेंट किया है, एक भव्य भागवत कथा सप्ताह का, ये पूरे 7 दिन होगा और विष्णु जी के बारे में कौन हम क्या कह सकते हैं। सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के चलाने वाले माने गए हैं, चलायमान भी हैं, स्थिर भी हैं। विष्णु में शायद वो कला है, अगर कोई कृष्ण का भक्त है, बहुत चंचल स्वभाव है, जब अपनी युवा अवस्था में आते हैं श्री कृष्ण, तब उनका चरित्र आपको कैसा महान होता है। महाभारत की सूत्रधार, मतलब ऐसा शायद ही विष्णु जी का कोई स्वरूप हो कृष्ण जैसा या श्री राम जैसा, अपने आप में पूर्ण, अपने आप में दृढ़। तो इस 7 दिन का जो ये पर्व होगा, ये भागवत कथा में जो अध्याय हैं, उन अध्यायों को पंडित जी हैं हमारे धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, वो इसका पठन पाठन करेंगे कथा के रूप में और उसे सामान्य दर्शकों के लिए, सामान्य जो हमारे यजमान हमारे साथ जुड़े हैं, कि वो संस्कृत को हम सबके बस की बात नहीं, उसको समझना या अपने अंदर उतारना, तो उनका वो हिंदी में उस कथा का वाचन होगा। साथ ही साथ इसमें एक जैसे आपने हम बात कर रहे थे कि अगर यजमान के मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो किससे पूछे। तो इस बार हमने वो भी प्रावधान रखा है कि जब कोई भी यजमान इसे बुक करता है तो 4-5 हमने ऑप्शंस दिए हैं उन्हें, वो उस पर क्लिक करें और